Hello friends, welcome all of you back. Yesterday we had a nice discussion about the mastermind, right? हमने अपने पहले सेशन में क्या देखा था? First session was about soul के बारे में, right? About soul and how now we are having this bodily machine, and inside this bodily machine there is a soul, right? Which is the actual driver, okay? और last session में हमने देखा कि कैसे just like we have a driver for our body, same way there is a driver for this cosmos, this cosmic machinery also, right? And that is a mastermind, that is a supreme being, okay? Now today we are going to learn another very interesting topic. The topic is discover the manual of life. Okay. So you see, how many of you know about the manual? Manual किसको बोलते हैं? Okay. What is the manual? A book which contains the knowledge of any Gadgets और other things, right ना? Yes. तो जब भी हम कोई नया आइटम खरीदते हैं तो उसके साथ में उसका एक मैनुअल भी आता है, राइट? लाइक आप में से कई लोगों ने कैलकुलेटर्स खरीदा होगा, राइट? फर्स्ट इंजीनियरिंग में जब आते हैं तो कैलकुलेटर्स खरीदते हैं, थोड़े इंजीनियरिंग वाले कैलकुलेटर्स, राइट? तो उसके साथ में देखोगे मैनुअल आता है, करेक्ट ना? तो आप देखिए हर एक गैजेट के साथ में एक मैनुअल आता है, राइट? सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द मैनुअल? एनीवन कैन शेयर? हाँ, यस. Sir, it helps us to know more about the product and its working also, like how we can operate it. Very nice, right? So manual teaches us that how we can operate the particular machine in the best possible manner. Okay. So suppose if we don't know how to operate the machine, then we will end up in trouble. We will be not able to use the machine to the full capacity, right? Suppose you have purchased a cooker. See अब now कुकर में क्या है, घर पे कुकर यूज़ करते हैं ना हम लोग, मान लो अब उसमें 2 सीटी 3 सीटी आने के बाद में उसको बंद करना है, लेटर से किसी चीज़ के लिए ना. अब आपको पता नहीं कि उसको कितनी सीटी के बाद में बंद करना है. पता चला उसमें स्टीम बनता रहेगा, पता चला फूट जाएगा वो, right? If you don't have the knowledge about it, you have purchased suppose car. Now some cars they use diesel, some requires petrol, right? So if you don't know that what is the requirement of your car, then you will be able to misuse. You may end up misusing your car, right? So manuals किसके लिए यूज होते हैं? हमें बताने के लिए कि कैसे मशीन को प्रॉपर्ली यूज करना है, करेक्ट ना? सेम वे फ्रेंड्स, सी just like for all these machines, we also need a manual. Same way, we also have our bodily machine, and we are also staying in this cosmic machine, right? तो इस वर्ल्ड में भी बेस्ट पॉसिबल वे में रहने के लिए हमको कुछ मैनुअल्स चाहिए. तो they are called as the manuals of life, which can teach us that how we can lead our life in this world, how we can have happiness in our life, how we can lead a meaningful life. Okay. So today we are going to learn about it. That okay, what is the manual of our life? From where we can get all the information about our life, about this world, and this information can greatly transform our life, change our life. Okay, so we will begin with a nice story. Okay, so these are going to be the contents. Okay, we'll see each of them one by one. So first we are going to begin with the story. तो आप लोगों ने, कई लोगों ने शायद स्टोरी पहले सुना भी होगा. एक बार 6 अंधे लोग थे, there were 6 blind men, and they came across an elephant. Okay, and they started touching different parts of the elephant, and see they were not knowing what an elephant is exactly all about because they were blind, they have never seen the elephant. So then they came across the elephant, they were touching different parts of his body, and they were telling कि अरे elephant is like this, right? For example, like the first person who touched the tusks, so he told that अरे elephant is like a arrow. Sorry, first person is shown here catching the सूंड है ना उसकी, ट्रंक जिसको बोलते हैं, करेक्ट, राइट? तो उसने बोला कि दिस इज लाइक अ स्नेक. अदर पर्सन हु कॉट द टेल, ही टोल्ड दैट इट इज लाइक अ रोप. एलिफेंट इज लाइक अ रोप. सिमिलरली अनदर पर्सन टच्ड द साइड्स, ही टोल्ड दैट इट इज लाइक अ वॉल. अनदर पर्सन टच्ड द legs of the elephant, he told it is like a trunk of a tree. So like that all 6 of them touched different parts of the elephant. Okay, and then they were arguing with each other कि अरे मैं बोल रहा हूँ कि एलिफेंट तो वॉल के जैसा होता है, अरे तुम बोल रहे हो कि एलिफेंट रोप के जैसा होता है, ऐसे कैसे हो सकता है? लगता है तुमने ध्यान से देखा नहीं लगता ऐसा करके. तो they were arguing with each other and they were not able to come to a proper conclusion that what elephant is all about. So now question for all of you, were they wrong what they were telling about the elephant? Were they wrong in their understanding of elephant? No, okay. So what was, but was it the complete understanding? No. So the thing is, it was not the complete understanding, and it was not the wrong understanding also. So basically, it was a partial understanding of the elephant, what they were able to make out. Correct, right? Na? So they were having this argument. Same way आप देखोगे ना इस world में भी, like all of us also, when we try to observe the nature, observe this world, then we are also able to come out
we are also able to come across different types of observations, right? To give an example, like आप सबने science में पढ़ा होगा ना, when you talk about light, when we talk about a light, now is the light of particle nature or is it of the wave nature? So one group of the scientists, they claim that light is basically, it is of waves, okay? It is all about waves. Another group of the scientists observed that no, it is not only waves, there are some particles, photons, आप लोगों ने पढ़े होंगे right now. So they came out with the theory of particle nature of the light right now. तो आप देखोगे same way, in the nature also, when we also observe the things in this world, then we also come across the different facets of the truth, which may not be the complete truth. Okay? So in order for us to know about the complete truth, we have to do something. What is that complete? What is that something? We are going to learn it today in our session. Okay. For example, like suppose now, if all these people have to understand completely about the elephant, what can be the good way? We are going to learn it towards the end. Okay. How they can all know about the complete thing about the elephant. Okay. So you see, here it says there are 3 ways of gaining knowledge in this world. Okay, 3 तरीके से हम knowledge gain कर सकते हैं इस world में. First is called as प्रत्यक्ष प्रमाण, then there is अनुमान प्रमाण, and there is a शब्द प्रमाण. Okay. Now, before we get into this, let us discuss about knowledge. Okay, right? So, see, all of us, we go to our schools, we go to the colleges, right? Everyone goes to the schools, colleges, and the idea is to what? The idea is to gain the knowledge, right? So now let us analyze our lives. हमारे लाइफ में हमें, why do we need knowledge in our life? Like if it is being asked to all of us that why you are trying to have knowledge in your life, can any of you share why do we need to have knowledge in our life? Yeah, yes, Ayush. For earning money. For earning money, right? We go to the colleges. Achha, what will happen if we will earn money? We will have nice house, we will have nice car. Very nice. So basically we want to have comforts, correct? We want to have a comfortable life. We want to avoid the sufferings in our life, right? That's why we try to earn the money, we try to gain the knowledge, because that can help us to have a comfortable life, correct? For example, like we were having a problem of in the summers we find that there's a lot of heat is there. So now to relieve ourselves from the heat, what we have invented with this air conditioners, we have invented with this fans, so that we can have a comfortable experience, correct? Same way we used to walk, so the legs used to pain. So that's why we have come up with cars, automobiles, etc. Right? So basically to give comfort to ourselves, we need knowledge so that we can have a comfortable living. We can avoid the sufferings, right? Very nice. Any other reason why we do studies? Why we want to have knowledge? For happiness. Yeah, for happiness, right? That is same as getting comfort, right? Comfort means happiness, correct? Any other reason we have knowledge? To discover new things. To discover new things, okay, yeah, that is also one of the reason, right? Because it is our human nature that we want to inquire, right? हमें जानने की इच्छा होती है, correct? It's a human nature to inquire about the things around. When we see the things around us, we want to inquire about them. It's our human nature, parts of human nature, right? So one time, when Swamiji was there, and he was asking a scientist, "Arey, you have written 2 big books based upon your research upon the grasses." घास होता ना घास. एक साइंटिस्ट ने बहुत रिसर्च किया, उसने 2 बड़ी बुक्स लिख दी ग्रास के ऊपर में, ओके? कैसे ग्रास का कैसे ग्रोथ होता है, कौन से टाइप्स होते हैं, है ना, कौन से उसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं, कौन से उसमें सेल्स होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट? सो दिस स्वामी जी वाज आस्किंग कि अरे you have done so much research upon the grass, you have written 2 bulky books, you see these cows, है ना, they don't know about all this research, they don't know about all these grasses, but they are nicely eating the grass and they are very happy and peaceful. So what is the use of your research? If at all you want to do research, then why don't you do research upon the person who has made this grass, who has made all the things around this world? If you can research upon them, that will be more meaningful, right? Otherwise, what is the use of researching in that particular regard? Anyways, so why do we want to go for knowledge? Because it's our nature to inquire about the things, right? There's another one more reason. It is also because when we have knowledge, then we can be fearless. Just like suppose अभी हम लोग इस रूम में बैठे हैं, suppose अभी यहाँ पे लाइट नहीं है, let us say, right? There is darkness all around, right? So then what will happen to us? We will feel fear or not? There may be some snake, there may be some lizard, right? As soon as you switch on the light, what happens? You are above the fear, right? Correct? Because you can see the things properly, right? So same way, knowledge is compared to the light.
Okay, and the ignorance is compared to the darkness. So when we have knowledge in our life, then we can be very confident in doing our duties in this world. Okay, so that's why we need to have knowledge in our lives. Okay, and now you see the common ways by which we try to gain knowledge in this world. These are the three types of knowledges which we have. Okay, these are the three ways. Okay, तो पहला बताया गया प्रत्यक्ष प्रमाण. Okay, second is अनुमान प्रमाण, and third is called the शब्द प्रमाण. We will see each of them one by one. Okay, so let us first talk about the प्रत्यक्ष प्रमाण. So यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रत्यक्ष का क्या मतलब होता है? What is the meaning of प्रत्यक्ष? जो सीधा सीधा दिख रहा है। हाँ, जो सीधा सीधा दिखता है, राइट ना, जिसको हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, राइट. तो जनरली आपको पता होगा कि हमारे पास में 5 हमारे सेंसेस होते हैं, राइट, जिससे ज्ञानेंद्रिय जिनको बोलते हैं, जैसे कि हम लोग ज्ञान लेते हैं, राइट. और यू नो वी हैव ईयर्स, वी हैव आवर आईज, वी हैव आवर नोज, वी हैव आवर टंग एंड वी हैव आवर स्किन. सो दीज आर आवर सेंसेस, राइट. और इन सेंसेस के थ्रू हम लोग नॉलेज को ऑब्टेन करते हैं हमारे लाइफ में. ओके, तो इसे प्रत्यक्ष प्रमाण बोलते हैं. दैट इज डायरेक्ट सेंस परसेप्शन और द नॉलेज गेन डायरेक्टली फ्रॉम द सेंसेस by observation from the senses. For example, जैसे मैंने देखा है, suppose जैसे आपका जो शर्ट है, it is of black color. I can see with my eyes, so I can say that okay, the color of your shirt is black, right? So this is a प्रत्यक्ष way of getting the knowledge, correct? जो हमें दिख सकता है, जो हम जान सकते हैं, देख सकते हैं, absorb कर सकते हैं, okay? तो आप देखोगे most of the scientific research भी जो होता है, वो सब इस प्रत्यक्ष प्रमाण के बेसिस पे होता है, right? Scientists होते हैं, they do some set of observation inside the laboratories. And they are able to visibly see some calculations, some observations, and based upon that, they give some conclusions. Okay, so that is called as a pratyaksh praman, way of the knowledge. Now, here is a question: can pratyaksh praman give us the full knowledge? क्या हम लोग इस तरीके से full knowledge पर पा सकते हैं हमारे लाइफ में? What do you feel? What do you say? No, sir. No. Okay. How many of you say yes, sir? We can have full knowledge by pratyaksh praman. Okay, right? Some of us, right? Let us see whether it is possible or not, right? Like many people say that, what is God and all? If at all God is there, show me God, then I will have full faith upon Him. I believe upon only those things which I can see. Right? Some people have these arguments, right? So let us see now. Now, can we say that everything we see they only exist in this world? आप देखेंगे ऐसी बहुत सारी चीज़ें इस वर्ल्ड में, लाइक बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई जो मेरी आंखें देख पाती है मैं उसी पे भरोसा करूँगा, राइट, करेक्ट. बट देखिए ऐसी बहुत सारी चीज़ें इस वर्ल्ड में जो हमें दिखती हैं बट हमें पता है कि वो होती नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती, राइट. कुछ एग्जांपल्स आप लोग सोच सकते हैं इसके बारे में? मिराज, मिराज, ओके, राइट. मिराज समझते हैं आप लोग? Like in the deserts or even on the roads, on the summer day we find it sometimes, the sky, the water is being reflected, it shows like water, right now. So we see that it is appearing to us, but असली में वो होता नहीं है, right? Mirages is one, right? Any other example of the things which we see but we understand that it does not exist? Air, electricity. Air. See, we don't see that, right? But that exists, correct? We are asking about ऐसी कौन सी चीजें जो हमको दिखती है बट हमें पता है कि वो एग्जिस्ट नहीं है, वो गलत, वो सही नहीं है, ऐसे मतलब. लेट अस सी सम एग्जांपल्स हियर. जैसे यहाँ पे देखिए, आप क्या दिख रहा है आपको? जो रेलवे ट्रैक्स हैं वो कैसे दिखाई देंगे? आप यहाँ पे खड़े हैं तो आपको मिलते हुए नजर आएंगे, राइट. बट क्या वो असली में मिलने वाले हैं? कभी नहीं मिलने वाले, राइट. तो ऐसी चीजें जो आपको दिख रही हैं बट असली में पता है कि वो एग्जिस्ट नहीं करती है, राइट. अनदर एग्जाम्पल हियर, सी हियर इज अ स्मॉल किड. He is standing in front of 2 mirrors. One is a concave mirror, other one is a convex mirror. तो देखो कॉन्केव में क्या हो गया, उसका इमेज बड़ा हो गया, और कॉन्वेक्स में क्या हो गया, छोटा हो गया. देखा आप लोग, आप में से कितने लोगों ने इस तरह का चीज देखा है, पता है ना, करेक्ट ना. तो सी नाउ विद आवर आईज इट इज विजिबल दैट आवर इमेज इज लाइक दिस, बट इज इट रियली लाइक दैट? नो, राइट. लाइकवाइज आप देखोगे ऐसी बहुत सारी चीजें जो हमको दिखती है बट हमें पता है कि वो शोली एग्जिस्ट नहीं करती हैं, राइट. एंड सेम वे देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच वी डोंट सी बट वी नो दैट दे एग्जिस्ट, राइट. जैसे आप बता रहे थे पवन, राइट, अपने एयर के बारे में पता है, राइट. वी डोंट सी बट वी नो दैट इट इज एग्जिस्टिंग, राइट. Any other example for this? Things which we don't see but we know that they exist. Soul. Soul. Okay. थोड़ा ये हार्ड टॉपिक हो गया, राइट. अच्छा है, हमने कल ही डिस्कस किया था उसके बारे में, करेक्ट. इट इज ऑल्सो वेरी ट्रू. एनी अदर थिंग? Electricity, right? We don't see it but we know we can see the effects of that, right? So like that you will find there are many bacteria, there are many microbes, there are many types of waves, infrared rays, ब्लूटूथ जो कि हम लोग यूज़ करते हैं, उसके जो भी रेडियो वेव्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट. ऑल दिस वी डोंट सी बट दे एग्जिस्ट, राइट ना. सो द थिंग इज दैट कि इट्स नॉट दैट सीइंग इज ओनली बिलीविंग, दैट्स द मेन थिंग, राइट ना.
तो ऐसा नहीं है कि केवल जो हम सेंसेस से ऑब्जर्व कर पाते हैं वही चीजें एग्जिस्ट करती हैं, right? We cannot depend upon our senses for getting the knowledge, getting the truth. This is what we want to understand here, okay na? Why? Because the reason is because in our senses there are some defects. There are some defects because of which we are not able to get the complete knowledge by the means of our senses. Okay, let us see what are these defects. See, here are some examples more. Like you see, if you see a pencil, it will look to be bent, but it is not really bent. We all know, right? It is happening because of the refraction. This mirages, some of you have mentioned it right now. So it says we cannot acquire the complete knowledge using our material senses like the ears, eyes, etc. Why? Because we have 4 kinds of defects. Okay, what are those 4 defects? We will see each of them. Imperfect senses, illusion, mistakes and cheating. Okay, तो पहला चीज देखिए बताया गया है, फर्स्ट इज इम्परफेक्ट सेंसेस। तो हमारे जो सारे सेंसेस हैं वो सब इम्परफेक्ट है। इम्परफेक्ट का मतलब क्या है? दे ऑल हैव सर्टन लिमिटेशंस, ओनली दे हैव कैपेसिटी टू ऑब्जर्व ओनली सर्टन अमाउंट ऑफ रियलिटी। फॉर एग्जाम्पल लाइक लेट अस से, जैसे हम लोग अगर आइस की बात कर रहे हैं, ऑल ऑफ अस हैव रेड दिस इन आवर फिजिक्स बुक्स, व्हाट इज द विजिबल रेंज? 400 नैनोमीटर्स टू 700 नैनोमीटर्स, राइट? इसी रेंज को हम लोग देख पाते हैं हमारी आइज के थ्रू, राइट? इससे जो लोअर फ्रीक्वेंसीज हैं, ऐसे हायर फ्रीक्वेंसीज है, उसको हम लोग नहीं देख पाते हैं, करेक्ट? नो, वी डोंट सी दिस इंफ्रारेड रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, बट दे डू एग्जिस्ट, राइट ना? राइट? व्हाट टू स्पीक ऑफ दीज थिंग्स? इवन आप देखो, कैन आई सी द थिंग्स बिहाइंड मी विथ माई आइज? आई कैन नॉट सी। कैन आई सी व्हाट इज देयर इनसाइड दैट रूम? I cannot see that, right now. So there is a limitation with our senses, that we can only see a small part of reality, right, with our eyes. Same if you talk about the ears also. आपने सुना है ऑडिबल रेंज के बारे में? 22, right? उतना ही हम सुन पाते हैं, राइट? बाकी फ्रीक्वेंसीज हम नहीं सुन पाते हैं। तो आजकल एक नया अल्ट्रासोनिक विसल करके आता है। तो जैसे मान लीजिए घर पे आपको ना रैट्स है या फिर डॉग्स को भगाना हो मान लो, या फिर बहुत सारे जैसे लिजर्ड्स होते हैं, तो उसके लिए ये देयर आर दिस अल्ट्रासोनिक अल्ट्रासोनिक एमिटर्स रहते हैं वो, तो वो अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसीज को निकालते हैं, जिससे कि क्या होगा, जो भी सारे इंसेक्ट्स होते हैं या फिर जो लिजर्ड्स हैं वो सब भाग जाती हैं। तो आपको कुछ सुनाई देगा क्योंकि वो फ्रीक्वेंसीज आपको ऑडिबल नहीं है, बट वो उन सबको वो परसीव कर पाते हैं, देन दे रन अवे फ्रॉम दैट। ओके, लाइक दिस विल फाइंड दैट ईयर्स आल्सो हैव लिमिटेशंस। तो लाइक दिस विल फाइंड सेम वे हमारे जो सारे बाकी सेंसेस हैं सबके अंदर में लिमिटेशंस हैं, इसलिए हम लोग उनकी हेल्प से पूरा रियलिटी नहीं देख पाएंगे, हम एक स्मॉल पार्ट ऑफ रियलिटी देख पाएंगे। ओके, नाउ हियर इज अ क्वेश्चन, लेट अस से, सी हियर इज अ इंटेलिजेंट बॉय लाइक ऑल ऑफ यू, राइट? नाउ ही इज आस्किंग वन क्वेश्चन, ओके, इफ सेंसेस हैव लिमिटेशंस, आई कैन यूज द इंस्ट्रूमेंट्स टू गेट मोर नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, व्हाई टू बॉदर सो मच अबाउट द लिमिटेशन ऑफ द सेंसेस? ठीक है, हमारे पास में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं आजकल, वी हैव माइक्रोस्कोप्स, टेलीस्कोप्स एंड सो मेनी इंस्ट्रूमेंट्स आर देयर। सो ओके, मेरे सेंसेस भले ही लिमिटेड हैं, लेकिन उन सब के थ्रू तो मैं बेटर नॉलेज गेन कर सकता हूँ मेरे वर्ल्ड में, right? तो what all of you feel, see, what all of you feel about this? Is it true? Okay, we have limitation of the senses, but we have instruments जिससे कि हम लोग full knowledge ले सकते हैं। Yes? Okay, let us see what this Nobel Prize winner has to say about this. One of you can read this, Pawan. Even if we photograph the stars, eventually we have to take it by our senses what the photo shows. Furthermore, without our senses, we cannot handle a camera. Even if we have been refined by instruments, the knowledge is no more perfect than our imperfect senses. हाँ, देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि ठीक है, भले हमारे पास में इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनका बेटर कैपेसिटी है, जिसमें वैसा लिमिटेशन भले ना भी हो, लेकिन अल्टीमेटली उन इंस्ट्रूमेंट्स को भी ऑपरेट कौन करने वाले हैं? हम लोग ही ऑपरेट करने वाले हैं, करेक्ट? और अल्टीमेटली फाइनल जो इन्फॉर्मेशन है वो कौन लेने वाले हैं? हम लोग अपने सेंसेस के थ्रू लेने वाले हैं, राइट ना? तो क्योंकि हमारे सेंसेस डिफेक्टिव है, जैसे मान लीजिए सपोज यहाँ पे दिस पर्सन इज ट्राइंग टू लुक इन द स्काई फॉर द स्टार्स। नाउ सपोज देयर इज सम ऑब्जेक्ट व्हिच इज एमिटिंग सम फ्रीक्वेंसी, some light wave which is not in our visible region, let us say. So now will the person be able to make a judgment where to put that telescope, to see that object? Will not be able to see that. So point is कि ultimately आपको information कहाँ से लेनी है? हमारे senses से लेनी है, और क्योंकि वो senses में defect है, इसलिए ultimately आपके पास जो knowledge आएगा वो कभी completely perfect knowledge नहीं होने वाला है। Okay, so this is the thing we learn here. So this is the first defect, that we have
इम्परफेक्ट सेंसेस, राइट? हमारे सारे सेंसेस में लिमिटेशंस हैं, ओके? तो देखिए लिमिटेशंस होते हैं, इसलिए क्या होता है, हम पूरा रियलिटी नहीं देख पाते हैं एंड वी बिकम, हमें भ्रम हो जाता है। भ्रम का मतलब क्या होता है कि हमें पूरा सही तरीके से चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। सो दैट इज द सेकेंड डिफेक्ट विच वी हैव, विच इज कॉल्ड एज द टेंडेंसी टू बी इल्यूजन, कि हम भ्रमित हो जाते हैं, राइट? अभी आपको बहुत सारे अच्छे एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे यहाँ पर, राइट? यू विल बी एबल टू सी दैट हाउ विथ आवर आईज वी आर गोइंग टू सी सम थिंग्स विच आर नॉट रियली एग्जिस्टिंग। यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी दे रखा है, राइट? जैसे आप लोग इमेजिन कीजिए, मान लीजिए सपोज आपको ऑरेंज खाना है, ओके? सपोज आपने पहले गुलाब जामुन खाया और फिर आपने ऑरेंज खाया, तो ऑरेंज का टेस्ट कैसा लगेगा आपको? मीठा लगेगा कि कड़वा लगेगा? पहले आपने गुलाब जामुन खाया था, ठीक है, फिर आपने ऑरेंज खाया, ऑरेंज कैसा लगेगा, मीठा कि कड़वा? कड़वा लगेगा, राइट? सपोज अगर आपने पहले नींबू खाया, फिर अगर आप ऑरेंज खाते हो तो क्या लगेगा? राइट? तो क्वेश्चन ये है कि ऑरेंज मीठा है या फिर कड़वा है? मीठा है, तो फिर ये पहले वाले केस पे कड़वा क्यों लग रहा है फिर? सो एक्चुअली पॉइंट ये है कि ऑरेंज तो ऑरेंज ही है, लेकिन क्या है, हमारी जो टंग है उसको अलग तरीके से परसीव करती है, राइट? बिकॉज टंग हैज अ लिमिटेशन। तो इसलिए एक केस में वो उसको मीठा टेस्ट दे रही है, दूसरे केस में उसको कड़वा टेस्ट दे रही है, राइट? मान लीजिए सपोज अभी ठंडी का टाइम भी आ गया, राइट? मान लीजिए सपोज थोड़ा सा वार्म वाटर है, हल्का सा गर्म पानी है लेटेस्ट से, ठीक है? अभी अगर आप उसमें हाथ डालते हैं अपने नॉर्मल, अगर उसमें हाथ डालते हैं तो आपको कैसा लगेगा? पानी कैसा लगेगा? ठंडा लगेगा, गर्म लगेगा? गर्म लगेगा ना, गर्म पानी है, राइट ना? अभी मान लीजिए आप थोड़े अच्छे गर्म पानी में हाथ डाला हुआ था आपने, राइट? और इसे थोड़ा कम गर्म है, राइट? अब अगर जब इसमें हाथ डालेंगे तो कैसा लगेगा? ठंडा लगेगा, राइट? तो असली में वो पानी क्या है, ठंडा है कि गर्म है? पानी तो पानी है, लेकिन बेस्ड अपॉन हमारा जो सेंसेस का परसेप्शन है उसके हिसाब से हम उसको अलग अलग अप्रेज कर पा रहे हैं, राइट ना? तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, क्योंकि हमारे सेंसेस डिफेक्टिव हैं इसलिए हम लोग भ्रम में आ जाते हैं, राइट? अभी आपको कुछ और एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे तो सबको क्लियर होगा, राइट? यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे आपको क्या दिख रहा है, व्हाट यू आर एबल टू सी द स्क्रीन? ओल्ड लेडी दिख रही है? कितने लोगों को इसमें ओल्ड लेडी दिख गई? एक बूढ़ी औरत है, ओके, 1 2 3 4 लोगों को दिख गई, ओके? बाकी लोगों को, ओके चलो हम बाकी लोगों को हेल्प करते हैं। एक ओल्ड लेडी है जो कि नीचे की तरफ देख रही है, ओके? देखिए ये उसकी नाक है, ये उसका लिप्स है, इसके चिन है, और ये उसके स्कार्फ है, और इसके थोड़े हेयर्स हैं। दिखा कितने लोगों को दिख गया? अभी सबको दिख गया, ओके फाइन। हाँ, क्या इसके अलावा कुछ और दिख रहा है इसमें? हाँ, गर्ल दिख रही है, यंग लेडी दिख रही है? कितने लोगों को यंग लेडी दिख रही है इसमें? ओके गुड, नाइस, यू आर ऑल यंग बॉयज, इसलिए आपको एकदम इमीडिएटली यंग लेडी दिख रही है, गुड। तो देखिए अभी देखिए इमेज सेम है, लेकिन क्या दिख रहा है? इमेज सेम है, लेकिन उसमें कुछ लोगों को यंग लेडी दिख रही है, कुछ लोगों को ओल्ड लेडी दिख रही है, राइट ना? इट इज बिकॉज आईज आर डिफेक्टिव, राइट? सम मोर एग्जांपल्स यू सी यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? आर यू एबल टू सी अ वाइट ट्राइंगल? सी एक्चुअल में वाइट ट्राइंगल यहाँ पे नहीं है, करेक्ट? लेकिन ये तीनों ऑब्जेक्ट्स इस तरीके से अरेंज्ड है कि आपको एक वाइट ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, राइट? योर आईज आर गिविंग अ इल्यूजन दैट देयर इज अ वाइट ट्राइंगल देयर, एक्चुअली देयर इज नो वाइट ट्राइंगल देयर, but because these things are arranged in a fashion, it is appearing like this, right? स्क्रीन पे क्या दिख रहा है आप लोगों को? कुछ हिलता हुआ नजर आ रहा है आपको? 3 rolling cylinders. हाँ, 3 सिलेंडर्स हैं, तीनों मूव कर रहे हैं, घूम रहे हैं, असली में घूम रहे हैं क्या? लेकिन देखिए किसी को लेके देखिए ये मूव कर रहा है, इसे एक को देखिए मूव नहीं कर रहा है, बट सब दिख रहे हैं मिलते हुए, राइट ना? बिकॉज ऑफ द इल्यूजन क्रिएटेड बाय द आईज। सी सेम विद दिस आल्सो यू विल फाइंड इट। तो लाइक दैट आप देखेंगे ना कि देयर आर मेनी थिंग्स यू विल फाइंड, राइट? सो ऑल द सेंसेस हैव टेंडेंसी टू गेट इल्यूजन्ड, क्योंकि सेंसेस में डिफेक्ट है इसलिए हम भ्रम में आ जाते हैं, राइट? अभी देखिए जब हम भ्रम में आ जाते हैं तो क्या होता है? सपोज जैसे आपने भी देखा, राइट? किसने बोला यंग लेडी है उसमें, किसने बोला ओल्ड लेडी है, राइट ना? तो और वो सिलेंडर को आपने देखा तो बोलते हैं कि मूव कर रहा है, राइट ना? असली में वो नहीं कर रहा, राइट? तो जब हम इल्यूजन में आते हैं तो क्या होता है, उसके कारण हम क्या करते हैं? गलतियां करते हैं, वेरी करेक्ट, राइट? दैट इज अ थर्ड डिफेक्ट व्हिच हैपेंस टू ऑल ऑफ अस, दैट इज वी कमिट मिस्टेक्स, हम गलतियां करते हैं, ओके? तो देखिए ऐसा नहीं है कि हम ही गलतियां करते हैं, जैसे भी हम लोगों ने देखा ना, हमसे गलतियां हो रही थी, राइट ना? नो, इवन इन द साइंटिफिक वर्ल्ड, क्योंकि जो भी लोग रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्चर्स हैं, साइंस जो भी लोग लेबोरेटरीज में रिसर्च कर रहे हैं, बिकॉज दे ऑल्सो हैव दिस सेंसेस जिसमें कि सारे डिफेक्ट्स हैं, इसलिए उनसे भी बहुत सारी गलतियां होती हैं,
इससे आप देखोगे बहुत सारे साइंटिफिक में बहुत सारी पहले गलतियाँ हुई हैं, राइट? टू गिव यू सम एग्जांपल्स, पहले शुरू में ब्रेन को माना जाता था कि ब्रेन इज लाइक अ कूलिंग ऑर्गन। जैसे कार में रेडिएटर होता है ना, रेडिएटर में पानी डाला जाता है ताकि कार को ठंडा रख लेने के लिए। तो ऐसे इनिशियली साइंटिस्ट सोच रहे थे कि हमारा जो ब्रेन है वो भी एक रेडिएटर की तरह है जो हमारे पूरे बॉडी को ठंडा करता है, ब्लड को ठंडा करता है, राइट? बट लेटर ऑन नाउ वी नो फॉर श्योर कि दैट इज नॉट द फंक्शन ऑफ द ब्रेन। ब्रेन हैज नो सच फंक्शन लाइक दैट, ओके? सेम वे, यू नो, कितने लोगों ने इसके बारे में सुना है, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में? बायोलॉजी में सुना है आप लोगों ने? ओके। कितने लोग वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में जानते हैं? ओके, क्या होता है वेस्टिजियल ऑर्गन? यस दिव्यांशु, जेंटल बॉय। मतलब जिसका भी यूज नहीं होता वो। हाँ राइट, जैसे आपने सुना होगा अपेंडिक्स के बारे में, राइट? तो ऐसी चीज़ें, ऐसे कुछ ऑर्गन्स जो हमारे बॉडी में ज़्यादा यूज़ के नहीं है। तो इनिशियली साइंटिस्ट सोच रहे थे कि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसका हमारे बॉडी में कोई फंक्शन नहीं है, ओके? एंड दे वर थिंकिंग दैट इट इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन। बट लेटर ऑन अगेन उन्होंने जब रिसर्च किया तो देखा कि एक्चुअली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। इंडियड हमारे बॉडी में बहुत सारे जो फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे जो हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं, वो सब इस ग्लैंड के द्वारा किए जाते हैं। मैनी ऑफ द हार्मोन्स, मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स रादर। इससे बाद में उसको बोला, इसका जो इतना इंपॉर्टेंस, इसलिए इसको बोल दिया गया मास्टर ग्लैंड बोला गया, बिकॉज इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड ऑफ द बॉडी जो कि बहुत सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है हमारे बॉडी में। सिमिलरली आप देखोगे हबल कांस्टेंट, यू नो, एक जैसे आपने सुना लाइट ईयर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आपको याद है? वैसे ही एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में एक हबल कांस्टेंट है, उसका एक पर्टिकुलर वैल्यू उन्होंने डिफाइन कर रखा है। उसका वैल्यू बार 2-3 बार अब तक चेंज हो चुका है। तो एक्चुअल में डिस्टेंस तो चेंज नहीं होते हैं, बट उसका वैल्यू चेंज होता रहता है, आप देख सकते हो। तो कहने का मतलब क्या है कि इवन साइंटिफिक वर्ल्ड में भी हमको देखने को मिलता है कि बिकॉज द सेंसेस आर डिफेक्टिव, we tend to become illusioned and we are committing many mistakes even in the field of the science, okay? Now one question for all of you, जब हम कुछ गलती करते हैं तो what is our tendency? Do we want that mistake to be known by everyone or do we want to hide that mistake? हाइड करना चाहते हैं, राइट? सपोज आप लेबोरेटरी में गए और आपको एक एक्सपेरिमेंट करना था, ठीक है? आपको सपोज स्मॉल जी की वैल्यू निकालनी है, राइट? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द स्मॉल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट? 9.81, कितने लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया है लेबोरेटरी में जाके उसका वैल्यू निकालने का, राइट? कितने लोग हैं जिनका 9.81 एग्जैक्टली कभी आया है? क्या आता है? 10, 11, 12, कभी 2000 भी आ जाता है, करेक्ट? बट जो भी करके हम उसको जैसे तैसे करके उसको क्या दिखा देते हैं? 9.81 ले आते हैं, करेक्ट? होता है ना? तो वैसे कई बार हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, उसका कुछ ग्राफ निकालना होता है, राइट? सो नाउ वी नो कि ग्राफ का नेचर कैसा होना चाहिए? सपोज लीनियर होना चाहिए। तो भले हमारा पॉइंट इधर आया उधर आया जैसा भी आया, बस उसको एक को मिटा के बीच में डाल दिया आपने, करते हैं ना? सो द पॉइंट इज दैट व्हेन वी कमिट मिस्टेक्स वी वांट टू चीट, यू नो, वी वांट टू हाइड दोज मिस्टेक्स, ओके? सो वी वांट टू चीट, सो दैट इज कॉल्ड एज द चीटिंग प्रोपेंसिटी, दैट इज द फोर्थ डिफेक्ट, ओके ना? तो इवन साइंटिफिक वर्ल्ड में भी there are many varieties of cheatings which have happened, okay, right? Like here is a very famous example. आप में से कितने लोगों ने डार्विन थ्योरी के बारे में सुना है? सबने सुना है डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के बारे में? सो डार्विन सेज दैट हाउ जो हम सब ह्यूमन बींग्स हैं वो हम लोग किससे हैं? वी हैव कम फ्रॉम द एप्स, वी हैव कम फ्रॉम द मंकीज, ओके? सो डार्विन सेज दैट हाउ देयर वर इनिशियली एप्स, monkeys and slowly they have evolved to become human beings like all of us now, okay? तो इसलिए बहुत सारे, तो सी हियर आर द एप्स, हियर आर द ह्यूमन बींग्स, और उसके बीच में बहुत सारे इंटरमीडिएट स्पीशीज भी रही हैं, उन्हीं को बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक्स, बोलते हैं उनको साइंटिफिक लैंग्वेज में, कनेक्टिंग लिंक्स, ओके? तो नाउ तो बहुत सारे लोग रिसर्च करते हैं और दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट दिस मिसिंग लिंक्स और द कनेक्टिंग लिंक्स, ओके? तो 1912 की बात है, अ ग्रुप ऑफ द रिसर्चर्स दे केम अक्रॉस अ स्कल एंड दे क्लेम दैट इट इज अ इंटरमीडिएट लिंक, इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द एप्स एंड द ह्यूमन बींग्स, ओके? तो उन्होंने उस स्कल को ब्रिटिश म्यूजियम में उन्होंने उसको रखा था। बाद में 1953 की बात है, ये पिल्टडाउन की बात है। पिल्टडाउन में बहुत फेमस, ये पिल्टडाउन का केस है, बहुत फेमस केस था, पूरे वर्ल्ड मीडिया में आया था। 1953 में अनदर ग्रुप ऑफ द रिसर्चर्स दे अगेन ऑब्जर्व्ड दैट स्कल एंड दे फाउंड दैट इट वाज नॉट द रियल स्कल, इट वाज नॉट अ कनेक्टिंग लिंक। वो एक नॉर्मल ह्यूमन स्कल था जिसको थोड़ा बहुत फाइल वाइल करके चेंज करके उसको इस तरीके से पोर्ट्रे किया था कि ये कनेक्टिंग लिंक है, और फिर बाद में वो जो इनिशियल जो शुरू वाला रिसर्च था उसने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया एक्चुअली, लाइक दैट। तो ऐसे करके बहुत सारे इस तरीके से ऐसे बहुत सारे और भी जो डार्विन के जो कनेक्टिंग लिंक्स बताए गए थे, ऐसे बहुत सारे एक के बाद एक फ्लॉप हो गए। लाइक इसके ऊपर में एक वीडियो भी है हमारे पास में विद द सीड forgery of the evidences. So far, the subject
that they can even invent very different faces for the same skull. The three entirely different reconstructions made for the fossil calls in Xanthropus is a famous example showing how persistent. ओके, तो ये सारे कनेक्टिंग लिंक्स है बीच में, आपने देखा होगा इस वीडियो में दिखा रहे थे, जस्ट आई थिंक वीडियो गॉट मिस्ड. Evolutionists go so far in this subject that they can even invent very different faces for the same skull. The three entirely different reconstructions made for the fossil calls in Xanthropus is a famous example showing how persistent evolutionists are in producing these false masks. Another intermediate transitional form fabricated by evolutionists was the Nebraska man. This was cooked up in 1922 on the basis of a single fossil tooth. The evolutionists did not neglect to give it an ostentatious Latin name, Asparapithecus paralcuca, or to make imaginary drawings related to it. It was soon revealed that the tooth that had been the source of inspiration for Nebraska man, in fact, belonged to a wild pig. Many other fossil skulls have been presented as great evidence for evolution, failed one by one. Neanderthal man was advanced as evidence in 1856, dismissed in 1960. Piltdown man was advanced as evidence in 1912, dismissed in 1953. Zinjanthropus was advanced as evidence in 1959, dismissed in 1960. Ramapithecus was advanced as evidence in 1964, dismissed in 1979. So like this आप देखेंगे कि ये सारे बहुत सारे साइंटिफिक में बहुत सारी चीजें हैं जो बताई जाती हैं बट दे डोंट एग्जिस्ट एक्चुअली. इट्स ऑल चीटिंग प्रोपेंसिटी. ओके, so this was about the Pratyaksha Praman, that how this is one of the ways by which scientific things are being given to all of us by the direct observation, but we saw that how it is not completely perfect. Why? Because our senses have four kinds of defect, right? We have imperfect senses, because of which we get into illusion, then we commit mistakes, and then we want to cheat. We want to hide those mistakes, right? Now let us talk about the second way of gaining the knowledge. Okay, तो उसका नाम है अनुमान प्रमाण. What is the meaning of अनुमान? जनरली अनुमान लगाना किसको बोलते हैं हम लोग? गैस करना, राइट ना? तो देखिए ऐसी बहुत सारी चीजें जिनको हम लोग डायरेक्टली परसीव नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए गैस वर्क करना पड़ता है, राइट? जैसे मुझे मान लीजिए सपोज मुझे लाइक आई एम सीइंग इन योर पॉकेट, आई एम सीइंग दैट देयर इज समथिंग इन योर पॉकेट, राइट? सो आई कैन हैव अ गैस वर्क कि ओके इन योर पॉकेट मे बी देयर मे बी अ मोबाइल, or there may be a purse, or there may be some other thing in your wallet. I can have a guesswork, right? Let us say I guess that okay, in your pant there is a smartphone, let us say, right? Now, can I be fully sure that it is surely going to be a smartphone? Yes or no? It can be or it cannot be, right? I can't say for sure, right? So this is called as अनुमान प्रमाण, अनुमान लगाना, right? तो सेम आप देखोगे बहुत से जो साइंटिफिक थ्योरीज भी दी जाती हैं, तो they try to observe certain things and based upon that they try to give some conclusions, right? Like हम लोगों ने एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ा है सब लोगों ने, तो इनिशियली डाल्टन ने थोड़ा एटम्स के बारे में स्टडी किया and then he came across that how atom is the smallest particle, it cannot have any split. Okay, further then we find that Rutherford came up and he found that there was electrons, neutrons, protons, etc., right? Furthermore you find that Bohr came out with another model, right now. So they try to have some experimentations, they have some observations and they try to give some guesswork, they try to give some hypothesis. तो इसको बोलते हैं अनुमान प्रमाण लगाना या फिर guesswork कर पाना, तो most of the scientific theories हम जो देखते हैं that is based upon या तो प्रत्यक्ष प्रमाण पर बेस्ड होती है या फिर अनुमान प्रमाण पर बेस्ड होती है. इसलिए आप देखेंगे बहुत सारे साइंटिफिक थ्योरीज में हमको लर्न करना ना, इट मे बी लाइक दिस और परहैप्स इट वाज लाइक दिस, राइट? तो वन ऑफ द वेरी फेमस थ्योरी अंडर दिस इज द चार्ल्स डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, राइट? कितने लोगों ने डार्विन थ्योरी पढ़ा है अपने कुछ कॉलेज स्कूल डेज में, राइट? तो डार्विन ने बोला था कि कैसे हम सब हाउ वी हैव ऑल इवॉल्व्ड फ्रॉम द लोअर स्पीशीज, फ्रॉम द लोअर एनिमल्स, राइट?
हाउ यू नो फ्रॉम द एप्स द ह्यूमन बींग्स हैव कम अप. ओके, तो सिर्फ जो डार्विन की थ्योरी है ये भी अनुमान प्रमाण पर बेस्ड है. तो डार्विन ने क्या किया, डार्विन ने बहुत सारे जो लाइफ फॉर्म्स हैं, बहुत सारे जो स्पीशीज हैं, बहुत सारे जो एनिमल्स हैं, उनको उन्होंने स्टडी किया और उसके बेसिस पे उन्होंने कंक्लूजन डिराइव करके दिया. ओके, वो उनकी बहुत फेमस बुक है जिसका नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, जिसमें कि उन्होंने पूरा अपना थ्योरी दे रखा है, ये जो पूरा फिलॉसफी उन्होंने जो बताया उसमें वो लिखते हैं, एक बहुत फेमस चीज लिखते हैं वो, देखिए उसमें, दिस इज डेटेड 22 December 1857. He has written this statement, right? Any of you can read this, Abhishek? I am a firm believer that without speculation there is no good and original observation. After 5-year work, I allowed myself to speculate on the subject and drew up some short notes. These I enlarged in 1844 into a sketch of the conclusions which seemed to me probable. हाँ, तो उसने क्या किया, बहुत सारे लाइफ फॉर्म्स को स्टडी किया ना, द लिजर्ड्स, फ्लाइज, एक्सेट्रा, मस्किटोज, और उन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाला कि ही इज टेलिंग हिमसेल्फ कि आई स्पेकुलेट का मतलब होता है कि प्रेडिक्ट करना, गेस वर्क करना. ओके ना, आई इनटू स्केच ऑफ द कंक्लूजंस व्हिच सीम टू बी प्रोबेबल. सो सी ही इज आल्सो टेलिंग दैट आई एम गेसिंग दैट इट मे बी परहैप्स लाइक दिस. ओके, सो इसलिए उन्होंने इससे गेस वर्क किया था. तो सो सी नाउ when many researchers were trying to find out the proof for the Darwin theory, right? जैसे उसने बताया कि कैसे initially there were apes, then slowly because of the evolution the human beings have come up, right? तो बहुत सारे researchers ने उसको study करने का कोशिश किया है, research करने का कोशिश किया है. So many of the people, so now when we try to find out the earth crust, जब हम लोग fossils की study करते हैं, तो now so see when you study the earth crust then you find that inside the earth crust आपको fossils मिलते हैं, ह्यूमन बींग्स के भी फॉसिल्स मिल रहे हैं आपको और एप्स के भी फॉसिल मिल रहे हैं. नाउ डार्विन इज टेलिंग कि पहले बस एप्स हुआ करते थे, पहले ह्यूमन बींग्स नहीं हुआ करते थे. तो उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, अगर हम लोग खुदाई करेंगे तो फिर इसका मतलब है कि नीचे सिर्फ एप्स मिलने चाहिए. बट आप देखेंगे कि एप्स भी उस समय एग्जिस्ट करते थे और ह्यूमन बींग्स भी एग्जिस्ट करते थे. ऑलमोस्ट 2 मिलियन मीन्स 20 लाख साल पुराने फॉसिल्स अब तक स्टडी हमने कर चुके हैं. तो फ्रॉम द फॉसिल्स इट इज वेरी क्लियर दैट हाउ ह्यूमन बींग्स आर एग्जिस्टिंग इवन 20 lakh years before. And that time also the monkey was there. The monkey was in the same form, the human being were in the same form as they are today. So the records, the fossil records does not match with the Darwin theory. That's why it is rejected in all parts of the world. India में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसके बाद में उस चैप्टर के बाद में नेक्स्ट चैप्टर होता है ड्रॉबैक्स ऑफ द डार्विन थ्योरी करके होता है, राइट? So why this theory is not the right one? Because it is based upon the अनुमान प्रमाण. It is a guesswork, you will find it. ऐसे आप देखोगे डार्विन बहुत सी और चीज़ों के बारे में बताता है, like you know what Darwin says about how this this whale has come. तो बोलता है कि कैसे there were bears were there, और जो बियर लोग थे वो थोड़ा पानी में जाके थोड़ा स्विमिंग करना लगे वो, और थोड़ा बहुत वो उसमें जाके थोड़ा इंसेक्ट्स खाना स्टार्ट करते थे, और ऐसे करते करते उनका जो बियर था उसका जो पूरा बॉडी है वो वेल में चेंज हो गया. See, ये रियल में देखो आप उनके बुक पे लिखा हुआ है ना. आई एम जस्ट टेलिंग he says like that, right? Now does it look like a scientific theory or does it like a fiction? बचपन में से कार्टून देखते थे ना, सपोज भालू था, पानी में गया, स्विमिंग करते वो है ना वेल में चेंज हो गया. क्यों? इट लुक्स लाइक अ फिक्शन ना, बट दैट इज व्हाट डार्विन इज टेलिंग. सेम वे ही डज इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट जिराफ्स. जिराफ जानते हैं ना आप लोग, बड़ी गर्दन वाले जो होते हैं. तो डार्विन बोलता है कि जिराफ कैसे बने, पता है आपको? पहले जो एनिमल्स थे, जिराफ जो था पहले उसका छोटा गर्दन हुआ करता था, और वो थोड़ा ऊंचे से ट्राई करता था थोड़े पेड़ों से पत्ते खाने का. फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जो पत्ते थे वो कम हो गए नीचे के ब्रांचेस में, राइट? तो भी थोड़ा ऊंचे ब्रांचेस में खाने के लिए उसको थोड़ा गर्दन ऊपर उठाना पड़ता था कर लेने के लिए. तो जो लोग थोड़ा अपना गर्दन ऊपर कर पाए है ना, वो लोग सर्वाइव कर पाए, और बाकी सारे लोग मर गए एक्चुअली. ऐसे करते एफर्ट लगाते फिर उसका जिराफ का जो गर्दन है वो इतना बड़ा हो गया. सो ना द क्वेश्चन इज कि अगर ऐसा था कि भाई उसको खाना नहीं मिल रहा था लेटर से, उसके लिए अपना गर्दन इतना ऊपर करना पड़ा था, देन व्हाट अबाउट द अदर एनिमल्स? हाउ द अदर एनिमल्स वर एबल टू सर्वाइव एट दैट पीरियड ऑफ टाइम? देयर वर डियर्स हु सर्वाइव्ड, देयर वर काउज, देयर वर बफेलोज हु सर्वाइव्ड ऑन द लैंड, ऑन द ग्रास लैंड. और नाउ सपोज इफ डार्विन सेज कि अरे भैया है ना, थोड़ा उसको ईगो प्रॉब्लम था, गर्दन नीचे करके नहीं खाऊंगा, ऊपर के खाऊंगा, राइट ना? बट ये पानी पीने के लिए क्या करना पड़ेगा? गर्दन नीचे करना पड़ेगा ना. डजंट मेक एनी सेंस, करेक्ट? और अगर मानते किसी के जिराफ का गर्दन धीरे धीरे आया है, तो बीच वाले स्पीशीज भी तो मिलने चाहिए ना हम लोगों को. बट फॉसिल रिकॉर्ड में हमको ऐसा नहीं मिलता है.
जितना गर्दन जिराफ का आज लंबा है उतना ही पहले के फॉसिल्स में भी उतना ही लंबा गर्दन देखने को मिलता है हमको. सो इट डज नॉट मैच विद दैट, है ना. सो वी फाइंड इट हाउ, बिकॉज दिस थ्योरी इज बेस्ड अपॉन व्हाट, which प्रमाण, अनुमान प्रमाण, गेस वर्क. That's why we find that it is not valid, na. So there are many loopholes like this in that theory. So likewise you will find कि जो ज़्यादातर साइंटिफिक थ्योरीज जो होती हैं वो सब या तो प्रत्यक्ष प्रमाण पर बेस्ड होती है या फिर अनुमान प्रमाण पर बेस्ड होती है. सो नाउ कैन वी बी फुल्ली कॉन्फिडेंट कि जो ये थ्योरी हमको मिल रही है इनसे वो पक्का फुल प्रूफ थ्योरी है. इससे देयर इज अ रिसर्च, you know sir, in the scientific domain we say research. I am a researcher. What is the meaning of research? Research, again searching. Why? Because because every time you are arriving at a imperfect relative truth. हर बार आप एक नए ट्रुथ के पास में आते हो, एक नई रियलिटी के पास में आते हो, बट वो क्या एक और imperfect होती है. You can't be sure. For example, like right now, like atom के बारे में हम सब लोगों ने पढ़ा, राइट. तो इनिशियली बोला गया था कि एटम से कोई छोटा बड़ा पार्टिकल नहीं है. फिर बोला गया कि इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स से भी छोटे पार्टिकल है, दे आर द अल्टीमेट पार्टिकल, राइट. नाउ वी नो दैट उनके भी पार्टिकल्स होते हैं. यू हैव हर्ड अबाउट क्वार्क्स, राइट. नाउ क्वार्क्स आर being considered as the smallest particle. Tomorrow now some research may come and that they will find out how quarks also are having some other constituents. हो सकता है कि नहीं हो सकता, बताइए. So in that way we will find that the knowledge which we are gaining in the science, it is only a relative knowledge. It is a temporary knowledge. That's why the theory only remains for some time, and after some time that theory has no more value, right. जैसे हम लोग पढ़ते हैं डाल्टन थ्योरी, उसका कोई वैल्यू नहीं रह गया. बोर थ्योरी, उसका कोई वैल्यू नहीं हो गया. अभी क्वांटम थ्योरी आ गई, वो अभी उसकी वैल्यू चल रही है. कुछ समय के बाद में उसको रिप्लेस करने के लिए कोई दूसरी थ्योरी आ जाएगी. तो दैट्स व्हाई साइंस के थ्रू हमको जो नॉलेज मिलती है, बिकॉज इट इज बेस्ड अपॉन द शब्द प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण, इसलिए क्या है वो एक रिलेटिव नॉलेज है. इट इज नॉट द एब्सोल्यूट नॉलेज. एब्सोल्यूट नॉलेज मतलब कि जो एकदम परफेक्ट नॉलेज है, जो चेंज नहीं होने वाली है, ऐसी नॉलेज हमको नहीं मिल पाती है. ओके, नाउ हियर इज अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ अस. ओके, ठीक है, बाय द मीन्स ऑफ साइंस एटलीस्ट वी आर कमिंग आउट विद सम नॉलेज, बेटर नॉलेज, एंड वी आर एबल टू मेक सो मेनी गैजेट्स, वी आर एबल टू मेक अवर लाइफ कंफर्टेबल विद ऑल दिस रिसर्च राइट नाउ. तो फिर कुछ दिक्कत है क्या इसमें? साइंटिफिक रिसर्च से हमको अच्छे गैजेट्स मिल पा रहे हैं, करेक्ट. तो क्या कुछ दिक्कत है हमारे लिए? क्यों इतना माथा पीछे लगाने का? बेटर है, ठीक है, कोई नहीं, भले थोड़ा इम्परफेक्ट नॉलेज होगा, कोई बात नहीं, बट हमारा लाइफ कंफर्टेबल बन रहा है. व्हाट ऑल ऑफ यू फील अबाउट दिस? कंफर्टेबल नहीं है. ओके, कंफर्टेबल है, राइट. फैन चल रहा है, एयर कंडीशन चल रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट. there is one very big problem because of this research work. What is that problem you see? Let us see some examples, है ना. देखिए, सी यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है गेमिंग गैजेट्स के बारे में, राइट. सी आज के समय में हमारे लाइफ में बहुत सारे गैजेट्स ने हमारे लाइफ को ऑक्यूपाई कर रखा है, राइट. नाउ स्मॉल चिल्ड्रन आर ऑल द टाइम विद देयर स्मार्टफोन्स एंड दे आर जस्ट ट्राइंग टू प्ले गेम्स. तो रिसेंटली एक मदर आई थी, वो बोली थी कि सर थोड़ा हमारे बच्चे को समझाइए, ये पूरे दिन भर पबजी में लगा रहता है. मैंने बोला अरे मुझे समझी तो पता है पबजी क्या होता है. ओके, तो बोलती कि वो सुबह से शाम तक एडिक्टेड हो गया है मोबाइल को लेकर एक्चुअली. तो आप देखिए कि बहुत सारे गैजेट्स आ रहे हैं हमारे लाइफ में साइंटिफिक रिसर्च के कारण, बट क्या वो गैजेट्स हमारे लाइफ को बहुत कंफर्टेबल बना रहे हैं, हैप्पी बना रहे हैं? यू विल फाइंड इट उन सब के कारण हमारे बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी आ रहे हैं हमारे लाइफ में, राइट. फॉर एग्जाम्पल लाइक आप देखोगे, व्हाट इज द कंसिक्वेंस? पीपल आर हैविंग स्लीपलेसनेस, पीपल आर हैविंग many सिम्टम्स, डिप्रेशन, हियरिंग डैमेज, ओबेसिटी, लॉस ऑफ रिलेशनशिप्स. इवन जो स्मार्टफोन्स भी हम यूज़ करते हैं उसके बहुत सारे डैमेजेस हैं. अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसके भी निकाला है कैसे स्मार्टफोन्स को कैसे यूज़ करने की ज़रूरत है, सो दैट दे कैन हैव मिनिमम हेल्थ इफेक्ट अपॉन अस. तो बिकॉज ऑल्दो इट इज़ बेस्ड अपॉन गुड रिसर्च, बट बिकॉज इट इज़ डिफेक्टिव रिसर्च, इसलिए आप देखेंगे कि उनके साथ में बहुत सारे नेगेटिव कंसिक्वेंसेस भी आते हैं साइंटिफिक रिसर्च के साथ में, राइट. टू गिव एन एग्जांपल, लाइक शुरू में प्लास्टिक्स, जो आज हम लोग प्लास्टिक्स यूज़ करते हैं, शुरू में जब प्लास्टिक आया तो साइंस ने बोला कि इससे बढ़िया मेटल कोई अब तक हमने क्रिएट ही नहीं किया है. दिस समथिंग विच विल रियली ट्रांसफॉर्म द एंटायर वर्ल्ड, द हिस्ट्री ऑफ एंटायर वर्ल्ड. That was, it was considered to be the most worthiest material of all the time, the plastics which we have, right. Now today, what we know about plastics, this is the worst material we have ever discovered, we have ever invented, right. इसे बार बार बैन लगाने की कोशिश करते रहते हैं, राइट. गवर्नमेंट नई गवर्नमेंट्स आती हैं, बार बार उसको बैन लगाने की कोशिश करते हैं, बिकॉज सो मच प्लास्टिक पॉल्यूशन इज हैपनिंग. The rivers are getting contaminated, the atmosphere is getting contaminated, the soil is getting contaminated because of the plastics you will find.
So why? Because the research was defective, right? Some more examples. See, ये भी बहुत फेमस एग्जांपल है, रिसेंट डेज का हमने सुना इसके बारे में, राइट? तो यू हैव हर्ड अबाउट दिस थेरानोस लैब्स? तो इस लेडी ने एक टेस्ट निकाला, सिंपल है, उसमें क्या किया, एक छोटा सा ड्रॉप ऑफ ब्लड को लेके आप बहुत सारे वैरायटीज ऑफ टेस्ट कर सकते हो, आपके ब्लड के सारे बहुत सारे टेस्ट है ना। उसने क्लेम किया कि हमारे पास में टेक्नोलॉजी है जिससे कि आपका बहुत इजी वे में बहुत सारे टेस्ट कर सकते हो आप जस्ट बाय अ ड्रॉप ऑफ द ब्लड। लेटर ऑन इन द ईयर 2016 दे फाउंड दैट द टेस्ट विच दे वर क्लेमिंग टू गिव, दे वर नॉट गिविंग द प्रॉपर रिजल्ट्स, और उसके कारण बहुत सारे लोगों को अपना लाइफ भी लूज करना पड़ा। सो मच सो कि उसको पूरी तरीके से बाद में बैन करना पड़ा। इट वॉज अ बिग फ्रॉड विच केम अप, द रिसर्च वॉज नॉट परफेक्ट, इट केम आउट टू बी इम्परफेक्ट रिसर्च लेटर ऑन, राइट? लाइक रिसेंटली मैं सुन रहा था, इवन जो अभी हमको कोविड के टाइम पे जो वैक्सीन लगी हैं, राइट? अभी आई वॉज मीटिंग विद वन डॉक्टर, ही वॉज टेलिंग कि नाउ डेज मैनी पीपल आर कमिंग आउट विद दिस प्रॉब्लम विद द स्पाइन, जो पीछे जो पीठ की हड्डी का प्रॉब्लम कई लोगों को होने लग गया, एंड दे वर टेलिंग कि इट इज बिकॉज ऑफ द साइड इफेक्ट ऑफ द कोविड वैक्सीन विच ऑल ऑफ अस हैव गॉट। इससे टाइम टू कम में काफ़ी लोगों को उसका प्रॉब्लम आने वाला है। तो इसी नाउ द साइंटिफिक रिसर्च हैज गिवन अस दैट वैक्सीन्स, बट इट इज ऑल्सो कमिंग आउट बिकॉज इट इज बेस्ड अपॉन द इम्परफेक्ट रिसर्च। इसलिए आप देखोगे कि उसके साथ में बहुत सारे हेल्थ हज़ार्ड्स भी आते हैं, राइट? अनदर वेरी फेमस एग्जांपल इज ऑफ बिबॉनिक प्लेग, ओके? तो यूरोप में एक बार प्लेग आया था। प्लेग किसके कारण होता है? प्लेग रैट्स के कारण होता है, राइट ना? तो जब यूरोप में प्लेग आया तो शुरू में साइंटिस्ट वर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि ये क्यों हो रहा है बीमारी। तो उन्हें लगा कि ये किसके कारण हो रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ द कैट्स। तो उन्होंने सबको, सारे जो कैट्स है सबको उड़ा दिया, बट स्टिल दे वर फाइंडिंग कि दैट वाज नॉट स्टॉपिंग ओनली, वो बढ़ ही रहा था और मर रहे थे, इट वाज वेरी जस्ट लाइक वी हैड कोविड इन द रिसेंट टाइम्स ना, सेम इट वाज लाइक अ बिग एपिडेमिक इन दोज टाइम्स। पूरा का पूरा यूरोप का सफाया हो गया था ऑलमोस्ट, 47, 48 बढ़ रहा था, पूरा यूरोप को उसने ऑक्यूपाई कर लिया। सो इट डिडंट स्टॉप। Later on they found that it was not happening because of the cats, it was happening because of the rats. But the problem was what? To kill those rats, there were no more cats. That was the problem, right? Because of that scientific research. So this is the problem, that how half knowledge is a dangerous thing, है ना? So if by our research we are coming across some knowledge, लेकिन अगर वो defective knowledge है and we are going to make use of that knowledge in our life, then we have to face the consequences also in our life. I can give you plenty of examples for that, right? Like about fertilizers, pesticides, right? Initially we felt that, oh, this is very good, but now see what has happened because of their usage. So many of the land has become barren now. That's why again we are returning to organic farming. So that's why market में आजकल ऑर्गेनिक चीज़ों का बहुत दाम है ना। आपको ऑर्गेनिक वीट चाहिए, ऑर्गेनिक राइस चाहिए खाने के लिए, राइट? अगेन जो नेचुरल तरीके से जो चीज़ें कल्टिवेट की गई उसको लेने के लिए लोग कर रहे हैं, करेक्ट, मेहनत कर रहे हैं। तो सी अगेन दैट इज हैपनिंग, है ना? सो दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द प्रॉब्लम विद द साइंटिफिक रिसर्च, राइट? हाउ solution for one problem leads to another bigger problem, right? Like we wanted to avoid the pain of moving, etc. So we came out with the automobiles. But now what is happening because of the automobiles? So much pollution has happened on the earth, the pollution level is like anything. इसे स्पेशली देखो, अभी जब कोविड आया था तो everything has stopped. So आप देखोगे कि naturally the rivers have become cleaner, the air has become cleaner, okay? As soon as the COVID went, again आप देखोगे now the rivers have again become polluted, the air has already become. There is a survey, अगर आप पुणे, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता ऐसे किसी भी मेट्रो सिटी में अगर ट्रैवल कर रहे हो, मान लो सपोज आप सुबह से शाम तक अगर दिन भर वहाँ पे बाहर ही घूमे हो, then you know how much carbon you have taken inside your body. It is equivalent to two tablets of tablets होती है ना, 2 tablets. It is equivalent to 2 tablets of that carbon. Suppose 2 tablet है ना, 2 tablet के बराबर का कार्बन आप पूरे दिन भर में ले लोगे, because of that much pollution is there in those cities, in those places. So this is happening कि बिकॉज हमारा जो साइंटिफिक रिसर्च है वो इम्परफेक्ट तरीके से हो रहा है, इम्परफेक्ट चीज़ों पे बेस्ड है। इसके कारण ऑल्दो इट अपीयर्स कि वो हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाला है, बट एक्चुअली क्या करता है, वो बड़े प्रॉब्लम्स को बॉर्न कर देता है, क्रिएट कर देता है। ओके, सो सी यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग वीडियो है। ओके, लेट अस सी दिस वीडियो।
So what we are learning here, see, this person has not full knowledge of the machine, and that's why he's trying to figure out how to operate that machine. And what is happening because of that? He's into misery, right? The same way, अगर हमें proper knowledge नहीं हो किसी चीज़ के बारे में, अगर हम उसके साथ में deal करने की कोशिश करते हैं, then we create complicated situation for ourselves. So that's why, if we want to stay peaceful in this world, happy in this world, then we have to learn how to operate in this world, and that's why we need to have perfect knowledge. Okay. Half knowledge will not help us, imperfect knowledge will not help us. That is what we want to learn here, okay? So the question is that, okay, where are the manuals which can teach us how to operate in this world, how to have real comfort, real happiness in this world? So that is the third way by which we can get the perfect knowledge. So the third way is called as a Shabda Praman, which means hearing from a bona fide authority, okay? So see, till now we have seen that how जो भी साइंटिफिक नॉलेज हम हमारे लाइफ में यूज कर रहे हैं, दैट इज बेस्ड अपॉन द प्रत्यक्ष प्रमाण एंड अनुमान प्रमाण, एंड दे आर हैविंग डिफेक्ट्स, राइट? प्रत्यक्ष प्रमाण इज डिफेक्टिव बिकॉज ऑफ द imperfection in the senses, and अनुमान प्रमाण इज आल्सो डिफेक्टिव बिकॉज इट्स बेस्ड अपॉन द गेस वर्क, करेक्ट? सो नाउ इफ यू वांट टू गेट द एब्सोल्यूट नॉलेज, द रियल नॉलेज, द परफेक्ट नॉलेज, then the ways of Shabda Praman, okay? So what is the meaning of Shabda Praman? Let us discuss this. शब्द का क्या मतलब होता है? साउंड, राइट? साउंड, राइट? वर्ड्स, राइट ना? तो शब्द प्रमाण का मतलब होता है that we depend upon, instead of depending upon our eyes for the information, we try to depend upon the ears, we try to hear the knowledge, right? To give an example, ऐसे देखो, जैसे suppose आपको कॉलेज ज्वाइन करना था यहाँ पे, राइट? You have to join this college now. तो आप आए यहाँ पे, देखा आपने बाहर बहुत अच्छी बिल्डिंग दिखाई दे रही है, बहुत सुंदर बिल्डिंग दिखाई दे रही है, बहुत सुंदर हॉस्टल दिखाई दे रहा है, चलो यहाँ पे एडमिशन ले लेते हैं. ऐसा होता है? हम लोग ऐसा करते हैं? नहीं. क्या किया आप लोगों ने? What did you did? क्या किया? यस नितेश. सर हमने कुछ alumni से बात की, सीनियर से बात की कि कैसा कॉलेज है. हाँ, वेरी गुड, वेरी नाइस, राइट? तो हम लोग बात करते हैं, पूछते हैं सर कैसा यहाँ पे प्लेसमेंट्स कैसा होता है ना, कैसे जॉब आप लगती है यहाँ पे, टीचर्स कैसे पढ़ाने वाले, डिग्री यहाँ की वैलिड है कि नहीं है, करेक्ट? ये सब हम इन्फॉर्मेशन लेते हैं, राइट ना? सो वी हर्ड फ्रॉम द राइट पीपल, and then based upon that we were able to make a choice, correct? Like suppose if you have to get your sister married, now suppose one boy is there, he's looking very handsome, nice, can you just marry your sister to him? What you will try to do? आप पूछेंगे, पता करेंगे लोगों से कि ये कैसा लड़का है, करेक्ट? जो सही लोग हैं उससे इन्फॉर्मेशन निकालेंगे कि लड़का सही है क्या, सही जॉब अप है इसके पास में, सही कैरेक्टर वाला है कि नहीं, राइट? तो आप सुनते हैं सही लोगों से, तब आपको पूरी नॉलेज मिल पाती है. केवल देखने से वहाँ पे आपको नॉलेज मिलेगी क्या? नहीं मिलने वाली, राइट? तो एक बार की बात है, व्हेन बॉय वाज देयर, सो इट वाज समर डे, गर्मी के दिन थे, और उन लोगों का केमिस्ट्री का लैब था. सो ही वेंट टू द केमिस्ट्री, ही वाज वेरी फीलिंग वेरी थर्स्टी, बहुत उसको प्यास लगा हुआ था. तो केमिस्ट्री के लैब में गया तो उसने देखा कि वहाँ पे टेबल के ऊपर में एक ग्लास पड़ी थी, और उसके अंदर में एकदम कुछ लेमन जूस टाइप का पड़ा था, लग रहा था, और पास में एक दो लेमन भी पड़े हुए थे. तो उसको लगा, अरे बड़ा बहुत गर्मी लग रहा है, फटाफट से पी लेता हूँ. गया, ग्लास को लिया उसने, तो सोचा कि एक मिनट रुक जाओ, पहले पता कर लेता हूँ इसमें एक्जैक्टली लेमन जूस है कि कुछ और है. तो वहाँ पे लैब असिस्टेंट था, बोला अरे भैया ये इसमें है ना जूस ही है क्या, इसमें लेमन जूस ही है क्या? अरे नीचे रखो उसको, पियोगे ना तो तुम्हारा जीव वापस नहीं रहेगा, उसमें एकदम कंसनट्रेटेड एसिड है, उसमें पियोगे तो जीव में छेद हो जाएंगे तुम्हारे. तो बोला अरे लेकिन उसके पास तो नींबू भी, अरे मैं भी लंच किया हूँ, वो नींबू जो था वो मैंने वहाँ पे रखा है, लाइक दैट ही टोल्ड, यू नो. सो सी, तो शब्द प्रमाण का मतलब क्या है? टू हियर फ्रॉम द राइट पर्सन, राइट? सो वी कैन नॉट डिपेंड अपॉन अवर सेंसेस ऑलवेज, we have to hear from the right people, then we can have the perfect knowledge. So Shabda Praman means to depend upon the right sources for getting the knowledge in our life, okay? So when we approach a right source and we learn from them, then we can get the complete knowledge, the perfect knowledge, okay? That is called as a Shabda Praman, okay? That is a hearing from the right authority. So see, in the Bhagavad Gita also it comes, in the 4th chapter, Krishna tells to Arjuna, एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षयो विदुः. Krishna says that how, if you want to get complete knowledge about this world, then you have to approach the Vedas. From the Vedas, you can know, from the Vedas and from the proper teachers, you can know the complete knowledge about the
about the word that is being spoken. So that is the meaning of Shabda Praman. Okay. So see, here is a small child, एक छोटा बच्चा है suppose. So now suppose this child has to know about his father. Okay. So one of the ways could be if this boy wants to go for experimentation, then okay, one of the ways can be okay, he will go to the laboratory people and he will tell okay, tell me about my father. So they will tell okay, we will do a DNA testing. Okay. So सारा जो मेल पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड का उसके ऊपर में DNA टेस्टिंग किया जाएगा और उसके लिए देखिए कितना समय लगेगा. दे हैव कैलकुलेटेड इट. 800 साल लगेगा. उसके बाद में भी केवल 200 लोग ही मिलेंगे जिनमें से कि कोई उसका फादर हो सकता है. So this is one of the ways, right? This is how the child can know about his father. Okay. Now, is there any better way? तो इसको बोलते हैं inductive way of gaining the knowledge. Inductive way means by going with our own observations, experimentations. Okay, that is what is called as inductive, right? Now, so what is the easiest way for the child to know about his father? हाँ? रिलेटिव से पूछते, राइट? लाइक आपके लाइफ में, राइट? हमारे लाइफ में कौन हमको बताता है कि ये हमारे फादर हैं, ये हमारे दादा है, नाना है? किससे हमने सीखा? मम्मी सिखाती है, राइट ना? बेटा देखो ये कौन है तुम्हारे? ये तुम्हारे नाना है, बोलो नाना, इट करेक्ट, राइट? तो so simple thing is he can simply ask the mother. If he asks the mother will tell that अरे बेटा this is your father, correct? This is called as the deductive way of knowledge, right? Deductive means that from a right source you simply accept the knowledge. You don't have to go for the experimentation and observation, right? So what is the advantage of this? If you approach a right source and get the knowledge directly without your experimentation and observation, so what is the advantage of that? Time is being saved and energy saved. And now we are sure that this knowledge is correct. We can be very confident that this is the complete knowledge, right? Just like the child can be the confident that he is my father, right? Now, so this is the beauty about. So the way to get complete knowledge is the deductive way of knowledge. So we simply accept the knowledge coming from from the Shastras, from the Vedas. So because Vedas are the knowledge given by the God originally for all of us. So if we simply accept the knowledge of the Vedas, then we can get complete knowledge about this world. So this is the Vedic way of gaining the knowledge. So it is being told कि कैसे जो Vedas हैं उनको compare किया गया mother के साथ में, right? Like we all have our mother, and the mother tells us about the father. Same way the Vedas can give complete knowledge about the father, about the supreme God. So this is the Vedic process of learning the knowledge. Like जैसे हम लोग को कुछ भी लर्न करना होता है, जैसे सपोज इंजीनियरिंग लर्न करना है आपको, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? यू नीड ऑथराइज्ड कॉलेज, राइट? ऐसे कॉलेजेस जो कि ऑथराइज किए गए हों, जो कि जैसे AICTE के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, राइट? तो AICTE ऑथराइज करते हैं कि हाँ ये कॉलेज की डिग्री वैलिड है, राइट? मान लीजिए कोई कॉलेज बोला कि भाई आप हमारे यहाँ कोई भी यहाँ पे आके एडमिशन ले सकता है हमारे पास में, सबको हम डिग्री दे देंगे, एग्जाम भी नहीं देना पड़ेगा, बस ये कि उस डिग्री का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, कब सबको जॉब नहीं मिलेगी, राइट? वुड यू वांट टू जॉइन सच काइंड ऑफ कॉलेज? नो, you always want to go for an authorized college, correct? And in the college we learn from whom? We learn from the qualified teachers, professors, right? Those people who have also learned from their teachers, and those teachers, they teach us from what? They teach us from some authorized books, right? It's not that you go to the college and tell okay ठीक है मैं अपना पूरा research अपने आप करूँगा, नहीं. You go to the teachers, they tell you that okay you have to read from this book, you have to read all these researches, later on you can try to do your own research, etc., right? Same way अगर हमको स्पिरिचुअल नॉलेज भी चाहिए, अगर हमको वैदिक नॉलेज भी चाहिए, तो उसके लिए भी इट इज़ वेरी सिंपल. वी हैव टू अप्रोच अ प्रॉपर परंपरा. परंपरा का मतलब होता है एक प्रॉपर यूनिवर्सिटी कह सकते हैं. तो जो वैदिक नॉलेज है वो भी एक प्रॉपर चैनल में आ रही है. ऐसे 4 चैनल्स हैं जिसको संप्रदाय बोलते हैं या फिर परंपरा बोलते हैं. सो दे आर लाइक द ऑथराइज्ड यूनिवर्सिटीज और ऑथराइज्ड कॉलेजेस. ओके, एंड देन देयर आर सम ऑथराइज्ड टीचर्स आल्सो फॉर स्पिरिचुअलिटी. देयर आर ऑथराइज्ड गुरुज, एंड देन वी हैव ऑथराइज्ड बुक्स लाइक भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, okay, by which we can get complete knowledge about the Vedas. So we'll see this later on, you know. So now जो Vedas में जो knowledge आ रही है ना, see how it is very scientific. We'll just see in this slide. देखिए Vedas में क्या दे रखा है? Vedas में knowledge दे रखी है और वो already research knowledge है. आपको उसमें रिसर्च करने की भी जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी रिसर्च नॉलेज है, वो एब्सोल्यूट नॉलेज है. ओके, आप जस्ट उसको एक्सेप्ट कीजिए एंड यू ट्राई टू यूज इट इन योर लाइफ, एंड देन यू कैन हैव फुल रियलाइजेशन ऑफ दैट नॉलेज. आप उस नॉलेज को अपने लाइफ में रियलाइज कर सकते हैं. तो
देखो साइंटिफिक वर्ल्ड में भी हम लोग क्या करते हैं ना, साइंटिफिक वर्ल्ड में भी हमारे पास में कई चीज़ें ऐसी होती है जिसके बारे में पता है कि ये सही नॉलेज है, उसको हम सिंपली एक्सेप्ट करते हैं, उसका कोई प्रूफ नहीं दिया जा सकता है, उसे बोलते हैं एक्सियोम्स बोलते हैं, राइट। जैसे टू गिव यू सम एग्जांपल, लाइक यू नो इलेक्ट्रॉन्स जानते हैं हम सब, इलेक्ट्रॉन्स, आप में से कोई इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का है, इसी ब्रांच का? ओके फाइन। सो नाउ डू यू नो कैन वी एवर सी अ इलेक्ट्रॉन? कभी हम देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन को? आज तक पूरे हिस्ट्री में किसने इलेक्ट्रॉन को देखा है क्या? नहीं देखा, राइट। यू कैन ओनली सी द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन द कैथोड रे ट्यूब, CRT ट्यूब होती है ना, तो उसमें आपको उसके इफेक्ट को देख सकते हो इलेक्ट्रॉन्स को, बट कभी कोई आंखों से देख नहीं सकता इलेक्ट्रॉन्स को, इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, राइट। तो इसलिए आप देखोगे, आप देख नहीं सकते हो, बट पूरी ब्रांच डेवलप्ड है उसके ऊपर में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, राइट। इतने सारे आपको पढ़ने पड़ते हैं ना, BJT, TJT, डायोड, शायोड, राइट, पूरा ब्रांच उस पर डेवलप्ड है, राइट, बट आप देख नहीं सकते, राइट। सो इलेक्ट्रॉन, although we are not able to see electrons, but can we be sure that electrons exist? Yes, because the effect is visible, right? Same आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा about the imaginary number, right? That is I is equals to root of -1, right? Now, is there any proof of that I is equals to root of -1? Can you have any proof of this? No. So, but you will find that this is very valid thing. एंड वी एक्सेप्ट दिस, और इसी के बेसिस पे हम लोग पूरा नॉलेज, बल्कि आप देखोगे पूरा जो हमारा कैलकुलस है, अलजेब्रा है, वो सब इसके बेसिस पे हम लोग डेवलप करते हैं, राइट ना। तो ऐसे आप देखोगे कि साइंस में भी हम लोग बहुत सारे एक्सियोम्स को एक्सेप्ट करते हैं जो अपने आप में प्रूव्ड ट्रूथ्स हैं, आपको जिसको एक्सेप्ट करने की जरूरत है, और आप उसको यूज करके पूरा ब्रांच डेवलप कर सकते हो आगे के लिए, तो उसी को एक्सियोम्स बोलते हैं। तो वैसे जो वैदिक नॉलेज भी आ रही है वो भी एक्सियोम्स के फॉर्म में, वो भी फुल प्रूफ ट्रूथ्स है ऑलरेडी, उसको आप अपने लाइफ में यूज कर सकते हैं, एंड देन यू कैन हैव एक्सपीरियंस ऑफ दैट, दैट इज हाउ द वैदिक नॉलेज, राइट। लाइक यू नो अबाउट दिस आल्सो, लाइक हाइसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, राइट, द पोजीशन एंड द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी सीन, राइट। तो नाउ इसका कोई फुल प्रूफ नहीं है, बट इट इज अ नोन थिंग कि ये एग्जिस्ट है, उसी के बेसिस पे आपकी बहुत सारी थ्योरीज भी एग्जिस्ट करती हैं, ओके। सो नाउ सी एज वी आर डिस्कसिंग कि देयर आर ऑथराइज्ड कॉलेजेस टू अंडरस्टैंड द वैदिक नॉलेज, राइट। तो 4 तरीके के ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूट्स हैं, जिसे परंपरा भी बोलते हैं। परंपरा मतलब कि क्या है? गुरु शिष्य को ज्ञान देता है, और फिर शिष्य फर्दर शिष्य गुरु बनता है, एंड देन ही फर्दर गिव्स टू द, राइट। जैसे हमारे कॉलेज में टीचर्स होते हैं, नाउ हु आर द टीचर्स? टीचर्स आर द वंस हु हैव आल्सो लर्नड फ्रॉम देयर टीचर्स, करेक्ट, लाइक दैट इफ यू विल फाइंड लाइक दैट दे हैव लर्नड फ्रॉम द बिगिनिंग, ऐसे करके, तो इसी को बोलते हैं परंपरा बोलते हैं, इसी को सक्सेशन बोलते हैं, ओके। तो चार मेन सक्सेशन है जिसमें कि वैदिक नॉलेज आ रही है। ओरिजिनली द नॉलेज वाज बीइंग गिवन बाय द सुप्रीम गॉड to 4 personalities, okay? तो देवर लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी, शिव जी एंड 4 कुमाराज, ओके। और इन्हीं के बेसिस पे 4 संप्रदाय आ रहे हैं, जैसे श्री संप्रदाय बोलते हैं। तो आपने बहुत सारे फेमस आचार्य के बारे में सुना, लेकिन दिस अबाउट रामानुजाचार्य। अगर आप साउथ में जाएंगे, अभी त्रिची में जाएंगे, वहाँ पे उनका हेडक्वार्टर रहा है। रामानुजाचार्य वाज अ वेरी फेमस सेंट हु वाज हैविंग मेनी डिसाइपल्स एंड वाज वेरी लर्नड इन द वैदिक नॉलेज, that is called as Shri Sampradaya, okay? This is one institute. Another is a Brahma Sampradaya, जिसमें माधवाचार्य आए। There is Rudra Sampradaya, जिसमें विष्णु स्वामी आए। कुमार संप्रदाय, जिसमें निम्बारका स्वामी आए, राइट। तो ये सारे 4 ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूट्स हैं या फिर संप्रदाय हैं जहाँ पे कि आपको वैदिक नॉलेज मिल सकती है, राइट। और हम भी जो आपके साथ में इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, वी आर कमिंग अंडर द ब्रह्म संप्रदाय, ओके। तो ऐसा बताया गया है भागवत में कि कैसे ओरिजिनली जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, वैदिक नॉलेज है, वो ब्रह्मा जी को दिया था भगवान ने, ओके। और फिर ब्रह्मा जी से फर्दर वो नॉलेज आ रही है टू द नारद एंड द व्यास देव, और ऐसे करके अलग फर्दर लाइन में आ रही है। और 5000 साल पहले इस नॉलेज को व्यास देव ने रिटर्न फॉर्म में लिखा था। उससे पहले लोगों का मेमोरी बहुत शार्प था, इसलिए उनको रिटर्न फॉर्म की जरूरत नहीं पड़ती थी, तो उन्होंने 5000 साल पहले उसको लिखा। और जो वैदिक जो नॉलेज है वो बहुत वास्ट है, देयर आर लैक्स एंड लैक्स ऑफ श्लोकास। एक वेद में लैक्स एंड लैक्स ऑफ श्लोकास हैं, आप देखोगे तो बहुत वास्ट नॉलेज है। बहुत सारे उपनिषद हैं। कितने उपनिषद होते हैं? 108, राइट। कितने पुराणों के बारे में सुना है आप लोगों ने? 18 पुराण, राइट। कितने वेदास होते हैं? 4। तो उसके अलावा और भी बहुत सारे पंचरात्र हैं, इतिहासास हैं, षड्दर्शन है, तो बहुत वास्ट वैदिक नॉलेज है ना। अगर इसको पढ़ना चाहेंगे तो पूरा जिंदगी कम हो जाएगा हमारे लिए, राइट। लेकिन एक ब्यूटी क्या है कि जो पूरा वैदिक नॉलेज है उसका जो सार है वो भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम में दे रखा है। तो अगर हम सिर्फ भगवत गीता और भागवतम को पढ़ लेंगे, भगवत गीता इज हैविंग सम 700 श्लोकास एंड भागवतम इज हैविंग सम 18,000 श्लोकास। जस्ट अगर हम इन दोनों को पढ़ लेंगे देन वी विल गेट द एसेंस ऑफ एवरीथिंग
we'll be able to understand everything of this world and everything about ourselves. That is the beauty of this Vedic knowledge. So this is how, if you want to get complete knowledge, the perfect knowledge, that is coming by the medium of the Shabda Praman, by the means of the Vedas. Okay, now one very important thing. Now we may all have, हम में से कई लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि सर वेदास, क्या हमको वेदास में ब्लाइंडली फेथ पुट करने की जरूरत है सर? कैसे मान लें कि वेदास में जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो सही है कि नहीं है? राइट ना? सो वी आर गोइंग टू लर्न इट इन अवर नेक्स्ट सेशन, दैट हाउ in the Vedas there is so many wonderful things are there which even we all can also observe, which have come true. Even scientists are also amazed to see that information. तो अगले पूरे सेशन में हम लोग लर्न करेंगे कि कैसे Vedas are speaking about so many valuable informations, and we will explore that how it is very scientific and very logical to believe upon the information given in the Vedas, right? To give you some examples, like there are many things which Vedas mention and which even all of us also use in our daily lives nowadays, right? Like all of us have heard about yoga, pranayam, meditation. लोगों ने like कुछ साल पहले हमारा इंटरनेशनल योगा डे भी डिक्लेयर हुआ है, I think 21st June or something, right now. So yoga is becoming very famous nowadays. All people around the world are able to understand the benefits which yoga can give to our body. Generally, people try to go for the gymming, but gym can only help you to raise your muscles. But the yoga can give you a wholesome health. It can give you the peace of mind. It can give you the harmony of the body. So this yoga is given in the Shastras. It is given in the Vedas, right? Same, you know about Ayurveda. कितने लोगों ने आयुर्वेदा के बारे में सुना है? You know, there are many diseases for which allopathy has no solution. Homeopathy has no solution. But for them, Ayurveda has solution. Even in my practical life, I have seen, I was having a lot of trouble with my stomach at one point of time. I went for allopathic treatment, homeopathic treatment, many other things I went for. Finally, then I landed to an Ayurvedic doctor. He gave me a treatment for 3 months and my disease got cured from the root. I know another person, उसको पथरी का प्रॉब्लम था. पथरी समझते हैं आप लोग? जो स्टोन होता है. तो अभी जब एलोपैथी डॉक्टर के पास में वो गया तो उसने बोला कि भाई देखो आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा. Then he went to the Ayurvedic doctor. उसने बोला कि आपको ऑपरेशन करने की कोई जरूरत नहीं है. आई एम गिविंग यू सम मेडिसिन, आप इसको खाइए, कुछ समय में आपकी जो पथरी है वो ऑटोमेटिकली आपके स्टूल के साथ में निकल जाएगी, यूरिन के साथ में निकल जाएगी और या तो फिर पिघल जाएगी. He just took those medicines for 1-2 months और वो पथरी पूरा चला गया. इनफैक्ट जो उसका पथरी बनने का जो था ना, जो उसके बॉडी के अंदर में जो पथरी बनती थी वो वाला फंक्शन ही स्टॉप हो गया एक्चुअली. That is the potency of the Ayurveda actually. There are such a wonderful thing is there in the Ayurveda. This is a part of Veda. Ayurveda ना, it's part of Veda. Same way when Vedas talk about the Vedic mathematics. सुना है आप लोगों ने Vedic mathematics के बारे में? Just you can multiply 2-3-digit number just in one step. That is the power of the Vedic mathematics. Similarly, if you talk about, so see, Vedas have knowledge about everything. Vedas talk about the astrology, right? Like शादी से पहले मैच पिकिंग करते हैं ना, लड़के लड़की की कुंडली मिलाई जाती है ना, क्यों मिलाई जाती है? ये वैदिक साइंस है. लड़के के गुण देखे जाते हैं, लड़की के गुण देखे जाते हैं. अभी मान लीजिए लड़का बहुत स्पेशल माइंडेड है और लड़की बहुत ज़्यादा माइंडेड नहीं है, दोनों आपस में आएंगे तो क्या होगा? दे विल नॉट बी एबल टू स्टे हैप्पीली पीसफुली, राइट? तो वो जो इट्स अ साइंस, उनकी कुंडली मिलाई जाती है ताकि सो एज टू मैच देयर गुणास, ताकि वो सेम क्वालिटी वाले लोग हो. देन दे कैन हैव अ हैप्पी लाइफ, पीसफुल लाइफ. दिस साइंस इज गिवन इन द वेदास एक्चुअली. आज के समय में आजकल लोग फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए आप देखोगे दैट्स व्हाई डाइवर्सिटी रेट इज इंक्रीजिंग लाइक एनीथिंग. दिस इज वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर दैट. तो सेम वेदास टॉक अबाउट मेटलर्जी आल्सो. आप में से कितने लोगों ने आयरन पिलर के बारे में सुना है? ओके, व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ दैट? हाँ, नॉन रस्टिंग, राइट? पता है आपको वो ओपन एयर में है. इट इज स्टैंडिंग फॉर लास्ट 2000 years. इट इज इन द ओपन एयर. It is going through all the summers and all the winters, the rains, and still it is not rusting. So इसलिए lot of researchers from NASA also, many researchers have come to find out what is the composition of that metal. Even in the Vedic time, how they were able to have such kind of wonderful knowledge of the metallurgy, that they are able to come out with such a wonderful structure which is not rusting at all. That knowledge is given in the Vedas about the metallurgy. Vedas talk about the astronomy, वेदास में दे रखा है साइंस, कैसे हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं एक्लिप्सिस के बारे में, सीजन्स के चेंज के बारे में, वो साइंस दे रखा है वेदास के अंदर में. वेदास टॉक अबाउट द वास्तुशास्त्र. यू नो अबाउट वास्तुशास्त्र? तो वास्तुशास्त्र सेज दैट कैसे हमको, लाइक अगर हमें अपना घर करना है, बनाना है, तो उसके लिए कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन होने चाहिए, राइट? फॉर एग्जाम्पल एक किचन है तो किचन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रखना चाहिए. फ्रांस में एक बहुत बड़ा बिल्डिंग उन्होंने बनाया और बार बार उसमें आग लग जाता था. दे वर नॉट एबल टू फिगर आउट कि भाई क्यों हो रहा है ऐसा.
Then they consulted with an Indian वास्तुशास्त्र expert, and then he told कि भाई आप लोगों ने जो अपना किचन है वो गलत डायरेक्शन में बनाया हुआ है, आपने अग्नि के डायरेक्शन में बनाया है जबकि इसको दूसरे डायरेक्शन में होना चाहिए. Then they changed it a bit, and then there was no more fire actually. So it's a practical science which many people are using this Vastu Shastra. Same way Vedas talk about the music, you know about Sa, Re, Ga, Ma, classical music, that is coming from, that is a part of Vedas. Vedas talk about the dance, Bharatnatyam, सुना होगा आपने उस सबके बारे में. So you'll find Vedas have a lot of things to offer to all of us. In our practical life also. All these things are only small things we'll find right now. So like that we'll find there are many wonderful things given in the Vedas, and that will help us to accept the Vedas in our life, and to accept them as the manuals of our life. If we follow them in our life, then we can have a very nice, happy, meaningful life. Okay. So thank you so much. Just to conclude, just to summarize, हमने क्या क्या चीजें learn की. Okay, one last thing I just forgot it. You remember in the beginning we have discussed this story. कुछ है अंधे लोग थे, and they were not able to figure out कि elephant exactly कैसा होता है. Right? They were arguing with each other. Right now. So now, if they want to get a complete perfect knowledge about the elephant, then what do they need to do is very simple thing. A person came there जो कि अंधा नहीं था, जो कि perfect knowledge में था, right? And he came and he told कि भैया elephant मतलब ऐसा ऐसा होता है, right? And when they heard from this person, then they were able to figure out completely that this is what elephant looks like, right? Same way as we were discussing that how we may have some imperfect knowledge in our life about this world, about this nature, right? But if we want to get complete knowledge, then we have to hear from the right sources, and that is we have to hear from the Vedas. We have to take shelter of the Shabda Praman. Then we can have a perfect knowledge in our life. That's it. Otherwise, our knowledge we will be only able to see only a small part of reality. It may not be the complete knowledge. Okay. So this was a summary we discussed today. The three ways of gaining the knowledge: Pratyaksha Praman, Anuman Praman, and Shabda Praman. We discussed that how Pratyaksha Praman is not perfect because our senses have 4 kinds of defects. We discussed that how Anuman Praman is also not perfect. Why? Because it's based upon the guesswork. We discussed the famous theory of Darwin, which is in the Anuman Praman. And lastly, we showed at Shabda Praman that how Shabda Praman is the best way of getting the perfect knowledge by connecting with the perfect authority. And that is the Vedic authority we discussed today. And next time, we are going to learn very wonderfully from the Vedas that how Vedas are containing so much valuable information for all of us. Even the scientists are amazed how Vedas can tell about them so early. Vedas were written 5,000 years back. So next time we are going to have that discussion. I'm very sure that you are going to gain very tremendously from that session. So please make a point to surely come for that session and see for yourself that what our heritage is all about, what the Vedas is all about. We being Indians should know that what is our culture all about. So next time we are going to learn about this. Thank you so much.